إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي والهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تمام قسم کے تعریفات حمد و ثنا و کبریائی اس وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جنہوں نے ہم بنین و انسان کو اشرف المخلوقات کے اندر پیدا کیا، ہمیں راہ ضلالت سے راہ مستقیم کی طرف لانے کے لیے ہماری طرف بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ وہ الہ العالمین جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، غوث اعظم ہے، اس رب العالمین کی حمد و ثنا زیادہ سے زیادہ بیان کریں جنہوں نے ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ وہ رب العالمین جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں کی مغفرت معافی کروانے کے لیے ہمیں اور آپ کو آج کے اس جمعے کے خطبے میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی، آمین۔ اس کے بعد ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی رحمت للعالمین، شافع المذنبین، امام الانبیاء و خیر البشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ و اللہم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ سے ایک آیت تلاوت فرمائی ہے اور صحیح مسلم سے ایک حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے۔ انہی دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس جمعے کو خطبہ کو قرآن و حدیث کی روح سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بارگاہ الہی سے دعا گو ہوں کہ یا الہ العالمین جو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس دنیا میں کچھ زندگی رہ کے پھر اسی مٹی کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو لے کے جائے گا، پھر اسی مٹی سے اللہ رب العالمین دوسرے مرتبہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر قیامت کے دن اللہ رب العالمین اٹھائے گا۔ اور وہ دن قیامت کا دن، اس دن ہماری حالت کیا ہوگی؟ وہ قیامت کا دن ہم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سخت دن ہوگا جس کی آواز سے ایک حامل عورت اپنے بچے کو ان کا حمل گر جائے گا،
ये दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़ के भागेगी, लोग खौफ उनके अंदर तारी होगी, दहशत में होंगे। वो दिन एक इंसान अपने दोस्त से दूर भागेगा। इस दुनिया के अंदर जिससे आप और हम ज्यादा मोहब्बत करते हैं, माँ बाप बेटे, इनको हम क़यामत के दिन पहचान नहीं पाएंगे। वो दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सख्त दिन होगा। हम तमाम इंसान परेशानी के आलम में होंगे। अगर उस दिन की परेशानी से हमें और आप नजात पाना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल की इताअत करें। नाफरमानियों से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियों से हम बचे रहें, गुनाहों से बचे रहें, और जितना हो सके अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान व हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारें। तभी जाके हम उस दिन की परेशानी से, उस दिन की सदमे से, उस दिन की हवलनाकियों से हम और आप महफूज रह सकते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन के इन खतरनाक हवलनाकियों से बचने के लिए कुछ कामों को बताया है, जिसको अगर हम इस दुनिया के अंदर रह के उन कामों को अमल में लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन फरमान को अमली जामा पहनाए, तो यकीनन कल क़यामत के दिन हमारे साथ क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नजात देगा, क़यामत की हवलनाकी से हम बचे रहेंगे। उनमें से पहली चीज अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नफ़्फ़स अन मुस्लिमिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरब यौमिल क़यामा, के उस दिन क़यामत के दिन की अजाब से, उनकी हवलनाकियों से बचने कैसे बचा जा सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मन नफ़्फ़स अन मुस्लिमिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया, अगर कोई इंसान किसी शख्स की दुनियावी एक परेशानी को दूर कर देता है, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरब यौमिल क़यामा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स का क़यामत के दिन उनकी परेशानियों में से एक परेशानी को दूर अता फरमाएगा। यानी हम मुसलमान हैं, इस दुनिया के अंदर हमारा पड़ोसी है, हमारे मुसलमान भाई है। अगर कोई पड़ोसी, कोई मुसलमान भाई किसी तकलीफ में होता है, किसी परेशानी में होता है, और कोई इंसान उनकी परेशानियों को, उनकी तकलीफों को दूर करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के कल क़यामत का दिन, जो हमारे लिए एक बहुत ही सख्त दिन होगा, हम परेशानी के आलम में होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे परेशानियों में से एक परेशानी को दूर करेगा। क्यों? क्योंकि हमने इस दुनिया के अंदर एक इंसान की, एक शख्स की जरूरतों को पूरा किया। और हजरत मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान था जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिनसे हिसाब व किताब नहीं लिया, और उनको जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाखिल करा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसने अपने जिंदगी भर कोई ऐसा अमल नहीं किया था जिसकी वजह से वो जन्नत जा सके, लेकिन उनके अंदर एक सिफत यह मौजूद थी कि वो इंसान अपने नौकरों से हमेशा कहता था कि हर तंग दस्त को मोहलत दो, जो भी मकरूज है उससे कर्ज लिया है उन्हें मोहलत दो, हो सके तो उन्हें माफ कर दो। और वो इंसान अपने तंग दस्त भाइयों का, माजूर भाइयों का क्या करता था? मदद करता था। जिनकी परेशानी होती थी उनकी परेशानियों को वो दूर करता था। जो उनसे कर्जा लिया था उसको माजूरत के साथ उन्हें माफ कर देता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा कि मैं तो उससे ज्यादा क्या हक रखता हूं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके गुनाहों को माफ कर। तो इस दुनिया के अंदर किसी की परेशानियों को दूर करना, जिनको पैसे की जरूरत है उन्हें उधार देके उन्हें जल्दी उनसे ना मांगना, मोहलत देना, ये क्या है? हम इंसान अपने आप को उनको मोहलत देते हैं, मतलब अपने आप को क़यामत की हवलनाकियों से दूर रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दूर रखेगा। और हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक इंसान मौत हुआ तो सीधा हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन को जन्नत के अंदर भेज दिया। और जब जन्नत के अंदर उससे पूछा गया कि भाई कौन सा अमल करके इस जन्नत के अंदर दाखिल हुए हो, तो उन्होंने अपने जो आमाल है उनको गिना नहीं पाया। यानी उन्होंने कोई अमल नहीं किया था कि मैं कोई नेक अमल जो किया इस दुनिया के अंदर नहीं किया था, लेकिन वही चीज कि वो मालदार था, लोग उनसे कर्जा लिया, लेन देन का मामला लोगों से करता था, तो लेन देन में वो ढीला करता था इंसान को। लिया रुपया दिया किसी को उधार, वो जल्द नहीं, 2 दिन नहीं दे सका, तीसरा दिन मोहलत दिया, चौथा दिन मोहलत, 15 दिन, 20 दिन, इस तरह की मोहलत दिया करता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इन अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें माफ कर दिया और उन्हें जन्नत के अंदर दाखिल फरमाया। तो ये चीज है किसी तंग दस्त का, किसी गरीब का मदद करना, जिनके पास रुपया पैसा ना हो, खाने पीने के सामान ना हो, उनको रुपया पैसा मुहैया करना, उनके लिए कपड़ा खरीद के देना, ये अपने आप हम क्या करते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि कल क़यामत की हवलनाकियों से हम अपने आप को दूर करते हैं। इसलिए जहां तक हो सके हम मुसलमान एक दूसरे का मदद करें, किसी मुसलमान की परेशानियों को दूर करें, उनकी परेशानी का फायदा न उठाएं,
उनकी परेशानियों को देख के हम दिल के अंदर खुश ना हो। अगर खुश होते हैं किसी इंसान की, किसी शख्स की परेशानियों को देख के हम खुश होते हैं और मन में सोचते हैं कि सही हुआ उनके साथ ये काम हुआ है, तो हम अपने आप को जो है ये कल कयामत की हवलनाकियों से हम बचा नहीं सकते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग आओ हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत की हवलनाकियों से बचाएंगे। 7 तरह के लोग होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन कल कयामत के दिन अपने अर्श के साये के अंदर साया देगा। जिस दिन कोई साया नहीं होगा उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 तरह के लोगों को कयामत के दिन हवलनाकियों से, परेशानियों से दूर रखेंगे। उनमें से पहला शख्स इमामुन आदिलुन के एक वैसा हुक्मरां जो लोगों के अंदर कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला करता है, किसी के रुपया पैसे के बहकावे में आके फैसला ना करता हो, कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला करता है, लोगों को सही निगाह से देखता है, जिनको जरूरत है उनकी जरूरतों को पूरा करता है। तो ऐसे आदिल, ऐसे हुक्मरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन कल कयामत के दिन परेशानियों से दूर करके उन्हें अपने अर्श के नीचे साया नसीब अता फरमाएगा। और वो दूसरा इंसान शाबुन नशाबुन फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजारी, अपनी जवानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के अंदर गुजारी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को कल कयामत के दिन अपने हवलनाकियों से उनकी परेशानियों को दूर करके उन्हें अपने अर्श के नीचे क्या करेगा, साया देगा। और तीसरा वो इंसान क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, जिनका दिल हमेशा मस्जिद में लटका रहता है, यानी ज़हर की नमाज पढ़ी फिर वो इंतजार में रहता है कि कब असर का अजान हो, कब फिर असर की नमाज पढ़ने के बाद वो इस इंतजार में रहे कि कब मगरिब का नमाज हो, अजान हो, मैं नमाज के लिए जाऊंगा। जिस इंसान का दिल मस्जिद के अंदर लटका रहता है यानी नमाज पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को भी कल कयामत के दिन अपने साया के अंदर अपने अर्श के नीचे साया देगा, उनको आराम की जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। नहीं तो कल कयामत के दिन कोई साया नहीं होगा, सूरज को हमारे सर के ऊपर लाके खड़ा कर दिया जाएगा, लोग परेशानी के हालत में होंगे, लेकिन ये 7 तरह के लोग होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के नीचे साया देगा, जिनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। और चौथा इंसान जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मोहब्बत की और जुदा भी हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, यानी एक ऐसे इंसान से दोस्ती किया कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हो, तुम नमाज रोजे ज़कात देते हो तो मैं तुमसे दोस्ती करता हूं, और अगर वो नमाज रोजे ज़कात देना छोड़ दिया, उनसे दोस्ती भी करना छोड़ देता हूं, तो ये शख्स को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कल कयामत के दिन अपने अर्श के नीचे क्या करेगा, साया देगा, उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। और 5वां इंसान जो अपने इस दुनिया के अंदर जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल धन दौलत बहुत दिया है और वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करता है, जो माल जो दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दिया है ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दिया है। और वो इंसान अपने माल से ज़कात निकालता है, सदका देता है, और ऐसा सदका कि दाया हाथ से अगर सदका किया ला यालम कि उनको बाया हाथ को पता नहीं चलता है कि कितना दिया है। अगर खुलूस नीयत के साथ वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में सदका देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसको कल कयामत के दिन, जिस दिन लोग परेशानी के आलम में होंगे, लोग अपने पसीने में डूबे हुए होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को, सदका करने वाले शख्स को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कल कयामत के दिन अपने अर्श के नीचे साया नसीब अता फरमाएगा। और अगर कोई इंसान सदका करता है दिखावे के तौर पे, सदका करने वालों इतना समझ के रखिए कि जो भी इंसान सदका करता है अपने जुबान से उस बात को अगर मस्जिद में दिया है तो घर में जाके किसी को ना कहे, ना बीवी ना बच्चे ना और किसी को कहे कि मैंने इतना रुपया दिया है। अगर आप मस्जिद में यहाँ के 10 रुपया दिए हैं और अगर घर में जाके आपने अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, लोगों को सुना दिया कि मैंने तो वहां पे इतना चंदा दिया था, मैंने फला जगह पे इतना सदका किया था, तो आपका सिर्फ नाम का सदका होगा, आपको जो नेकी मिलनी चाहिए वो नेकी तो आपको इस दुनिया के अंदर तो नहीं मिलेगा, और अगर यहां ना मिले तो आखिरत में आप इसका उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सदका आप दाएं हाथ से कीजिए ताकि बाएं हाथ को भी क्या ना चले, पता ना चले। और वो इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत में अपने जिंदगी को गुजारता है, तो ये जो चंद अफराद हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इन अफरादों को कल कयामत के दिन, जो दिन हमारे लिए क्या होगा, एक सख्त दिन होगा, हमारे लिए एक निहायत गिरा
وہ دن ہوگا جس میں ہم پریشان کے عالم میں ہوں گے، لیکن اگر اپنے اعمال کے اندر ان کاموں کو ہم اس دنیا کے اندر عمل میں لاتے ہیں، ان کاموں کو کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اپنے اس دن کی ہولناکیوں سے ہمیں کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین بچائیں گے۔ اور وہ قیامت کا دن ہوگا کہ جس دن مقام محمود پر تمام اہل محشر کے لیے کیا ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، کیونکہ وہ جو قیامت کا دن ہوگا وہ اتنا سخت ہوگا کہ 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا۔ وہ دن جو قیامت کا دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، اور سورج ہمارے سر کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پسینے سے ہم انسان کیا ہوں گے؟ تربتر ہوں گے، لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تب لوگ آپس میں اپنے دل میں یہ اظہار کریں گے کہ کاش اللہ رب العالمین ہمارا جلدی سے جلدی حساب و کتاب لے لے، تاکہ ہمارا فیصلہ ہو جائے کہ ہم جہنم میں جائیں یا جنت کے اندر جائیں گے۔ یعنی اس پریشانی سے وہ جو دھوپ ہمارے سر کے اوپر، سورج کو ہمارے سر کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، تو ہم اس کی تپش کو، ان کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک گوشت لایا گیا، اللہ کے رسول کو وہ گوشت کھلانے کے بعد پکا کے دیا گیا۔ اللہ کے رسول اس گوشت کو اپنے دانتوں سے توڑ توڑ کے کھایا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو کل قیامت کے دن میں تم لوگوں کا سردار بنوں گا، اور یہ کیسے ہوگا تم لوگوں کو معلوم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام لوگوں کو ایک میدان میں اہل محشر میں کے اندر جمع کیا جائے گا، اور ایک منادی، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ سکتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اتنی پریشان ہوں گے کہ لوگ بے بس ہو جائیں گے، صدمے میں، پریشانی میں، غم میں بے بس ہو جائیں گے، کیونکہ سر کے اوپر کیا ہوگا؟ سورج ہوگا، گرمی اتنی ہوگی کہ لوگ ادھر ادھر اپنے آپ کو جھانک نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کو غم ہوگا، صدمہ ہوگا کہ اس غم سے، اس گرمی سے ہم کیسے بچیں۔ پھر لوگ ایک دوسرے کو آپس میں جب لوگ کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے کو کہے گا کہ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نہیں دیکھتے کہ ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ ہم بے بسی کی حالت میں ہیں، ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ ہم پریشانی کی حالت میں ہیں۔ چلو کسی ایک انسان کو تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے پاس جائے اور ہمارے بارے میں شفاعت کرے۔ تب لوگ، تمام لوگ مل کے، ہم اور آپ تمام لوگ مل کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور آدم علیہ السلام کو جا کے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام آپ کیا ہے؟ آپ کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے رسول بنایا، آپ کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا، اور اس مٹی میں اللہ رب العالمین نے آپ کے جان، روح پھونک دیا، آپ کے اندر جان کو ڈالا، آپ جائیے ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے سفارش کیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں آج تو اللہ رب العالمین اتنا غضبناک ہے، اتنا غصہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا، اور نہ کبھی بعد میں اتنا غصہ ہوگا، لیکن میں اللہ رب العالمین کے وہاں تمہاری سفارش کے لیے نہیں جا سکتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کل جب میں جنت کے اندر تھا تو مجھے ایک درخت کا قریب جانے سے منع فرمایا تھا، لیکن میں نے انکار کیا تھا۔ اس جنت کے اندر ایک درخت کے پھل کو میں نے کھا لیا تھا۔ نفسی نفسی، مجھے تو میری فکر ہے کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ کیا کرے گا، اس لیے تم مجھے تلاش نہ کرو۔ ہاں ایک انسان ہے میرے بعد اور جو رسول ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم کس کے پاس چلے جاؤ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب وہاں جائیں گے، تمام لوگ مل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور ان کو وہ یہی بات کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے دوست تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو دوست بنایا تھا، لیکن آپ ہماری حالت کو دیکھیے، ہم بے بسی کی حالت میں ہیں، ہم پریشانی کے عالم میں ہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے پریشان میں ہیں؟ تو آپ چلیے اللہ رب العالمین سے ہمارے بارے میں سفارش کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ ہاں اللہ رب العالمین کیا آج اتنا غصہ ہے کہ وہ کبھی اتنا غصہ تھا نہیں، اور نہ اتنا غصہ ہوگا، لیکن میں اللہ رب العالمین کا وہاں جا نہیں سکتا ہوں، کیونکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں نے 3 غلطیاں کی تھی۔ نفسی نفسی، مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ کیا کرے گا، مجھے تو اپنے بارے میں فکر لائق ہے، اس لیے میں تمہیں جا نہیں سکتا ہوں۔ تم کن کے پاس چلے جاؤ؟ حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ پھر ہم اور آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کو بھی وہی بات کہیں گے کہ آپ کیا ہے، آپ
कलीमुल्लाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप बातचीत कर चुके हैं। आप हमारे बारे में सिफारिश कीजिए, हमारे हालत को नहीं देख रहे हैं, हम परेशानी के आलम में है, हमें तकलीफ पहुंची हुई है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि हाँ जरूर, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आज जितना गजबनाक है, जितना गुस्सा है, इससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी इतना गुस्सा नहीं हुआ और ना कभी गुस्सा होगा। लेकिन मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को वहां जा नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि दुनिया में रहते हुए मैंने एक इंसान को एक मुक्का मारा था जिससे वो मर चुका था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे उसको मारने का हुक्म नहीं दिया था। नफ्सी नफ्सी, मुझे नहीं मालूम कि मैंने जो दुनिया के अंदर वो काम किया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे साथ क्या करेगा, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता हूं। फिर वो कहेंगे कि तुम क्या करो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। हम लोग क्या करेंगे, फिर अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाएंगे और उनको वही कहेंगे कि आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बगैर बाप से पैदा किया है, कुल के जरिए से आप पैदा किए गए हैं। आप क्या कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को वहां सिफारिश कीजिए। आप हमारी हालत को देख रहे हैं, हम बेबसी के आलम में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सदमे में हैं, हमारे हालत को देखिए, हम कितनी परेशानी में हैं। आप चलिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारे बारे में सिफारिश कीजिए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं नहीं, हाँ इतना तो जरूर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज इतना गजबनाक है, इतना गुस्सा हुआ है कि जिंदगी भर वो कभी गुस्सा नहीं हुआ और ना इस तरह गुस्सा होगा। तो अपने गलतियों को क्या नहीं करेंगे, गिन नहीं पाएंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आपने जो कभी गलती किया है वो उनको नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी कहेगा कि नफ्सी नफ्सी, अरे मुझे मालूम नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा, मुझे तो अपनी फिक्र है, मुझे तो अपनी तकलीफ है, अपने बारे में सोच रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे साथ क्या करेगा। हाँ, तुम्हें मैं एक शख्स दिखलाता हूं, तुम वहां जाओ और उनसे सिफारिश करो, वो तुम्हारे बारे में हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश करे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दिखाएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूरे दुनिया के लोग अल्लाह के रसूल के पास जमा होंगे और अल्लाह के रसूल के पास आके बेबसी के आलम में, गम वो सदमे के आलम में अल्लाह के रसूल के पास आएंगे और अल्लाह के रसूल को कहेंगे कि अल्लाह के रसूल आप तो आखिरी नबी हैं, रहमतुल लिल आलमीन है, आपके बाद कोई नबी नहीं आया है, आप चलिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारे बारे में सिफारिश कीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फिर मैं वहां से उठ के अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के नीचे जाऊंगा और वहां जाके अपना सजदा रेज़ हो जाऊंगा, सजदा रेज़ हो जाऊंगा, अपने सर को झुका के अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे अंदर इतने इल्हाम करेंगे, उनके हम्दो सना के वो बातें इल्हाम करेंगे जो जिन बातों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे पहले कभी इल्हाम नहीं किया था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे इस सजदा रूह को देखते हुए फिर कहेंगे इरफ़ा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद तुम अपने सर को उठाओ, सर तुम मांगो, तुम जो भी मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। इश्फा तुसफ़ा, तुम शफात मांगो, जिस इंसान के बारे में शफात मांगोगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे शफात को क्या की जाएगी, कबूल की जाएगी। तो वो दिन क्या होगा, सख्त दिन होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी अंबिया किराम अल्लाह रब्बुल आलमीन के वहां सिफारिश शफात करने के लिए, हमारे शफात के लिए जाएंगे नहीं। अगर एक होगा तो वो कौन होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होगा। इसलिए हम अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात को पाना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वमा अताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को, हम इंसानों को जो चीज दे दिया है हमें उससे ले लेना है, उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जिस चीज से मना किया है उससे हमें रुके रहना है, उससे दूर रहना है। तभी हम क्या करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफात के हकदार बनेंगे। नहीं तो अगर इस दुनिया के अंदर अपने मन माने फला दूसरे तीसरे चौथे की तरफ हम जाएंगे तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बारे में शफात नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनको जन्नत में जाते जाते उनको बाहर फेंक दिया जाएगा सिर्फ इस वजह से कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों को नहीं माना और दीन के अंदर नई बातों को ईजाद किया। इसलिए हम क्या करें, इस दुनिया में हमसे जितना हो सके हम एक दूसरे की मदद करें, किसी इंसान की परेशानियों को दूर करें। अगर इस दुनिया के अंदर हम किसी इंसान की, किसी शख्स की, किसी मुसलमान की परेशानियों को दूर करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन भी क्या करेगा, हमारी परेशानियों को दूर करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो कि या इलाहुल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअत के हकदार बना। या इलाहुल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
حمد ومصلي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.